Thank you, sir, for welcoming me at Jawahar Navodaya Vidyalaya Surangi of Ganjam district of Odisha state. I feel so happy to be amongst you today morning here. Do you feel happy to see me? Do you feel happy to see me here? As your elder brothers from Navodaya pass out, students. This is my first school of Odisha state visit. This is my 8th state last 1 year. I have gone to 1,000 schools. In last 12 years I have gone, but last 1 year I am specially focusing on Navodaya schools as per request of our Pune division assistant commissioner sir. He has told me that you can serve Navodaya school also along with outside schools, because Navodaya school has given you a lot of support, lot of knowledge, lot of skills, values and everything. So you use your knowledge, skills, values for service of Navodaya students also. So I am following our assistant commissioner's advice or guideline, and also in our all schools of Navodaya Samiti we get simple guideline that the purpose of our coming to school should be learning. That's why they say come to learn. You see Navodaya gates in many places right mention that come to learn, enter to learn, no, come to learn. Words are simple, but if you think about following, then lifelong you can have the high motivation. You can have the high motivation. Learning is not just one time, short time activity. Learning is lifetime activity, all time activity, learning. And those who know how to learn, they can be happy always. Be happy. See, students feel that if I get 90 plus marks, if I get first position, I'll be happy. If I get good package in company, good payment, I'll be happy. Never. Simply money, simply big package, simply big position cannot make anybody happy without our proper attitude. Unless we have proper mood, high mood, good mood, we cannot be happy, because happiness is the state of mind. Happiness is the state of happiness is never dependent on outside external things. It may be marks, position, your property, your status, your fame, name, nothing. Happiness depends upon, life joy depends upon our personal mental state. What is our consciousness? What is our understanding of life? What is our motivation inside? Motivation. And now the Samiti has given very high motivation. What is that? After learning, go for, think about serving along with your earning. पैसा कमाने के साथ साथ आप अपने जीवन का उपयोग सेवा के लिए भी कीजिए. दैट इज गाइडलाइन. वो समिति का विचार, क्योंकि जब तक हमसे सेवा नहीं होगी, अपने हाथों कुछ सेवा नहीं होगा, योगदान नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन, अपने आत्मा को समाधान मिलने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि अपना स्वभाव ही है. स्वभाव शब्दों पे ध्यान दीजिए. बच्चे हिंदी समझते हैं? छोटे बच्चे हिंदी समझ सकते हैं?
हाँ, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि स्वभाव, अपनी आत्मा का ये मूल स्वभाव है, मूल गुण धर्म है। क्या? सेवा करना, टू सर्व इज अवर नेचुरल constitutional position, to serve. That's why job also is known as service. Yes, job, employment also known as service, because that's our nature, to serve someone, somebody, somehow. And we take pledge in the morning that I love my country, I love my. What is the meaning of love? Love means to serve. Mainly, love means to serve. The parents love the family, mother, father love the kids, so they serve their kids, family people. Why? Without having service, there cannot be true love. Whenever someone says I love something, I love someone, then he must do some good service for the welfare of the beloved. That is the understanding. Mainly I speak about life values, life skills and life science. We study physics, we study maths, we study chemistry, we may study languages, we study many things. Why not life science? Why not life science? You may say, sir, we know life science, we know biology, we study biology. Unfortunately, our modern biology simply deals with the study of physical body, only physical body. That body may be of the plants, plant body, animal body, bird's body, a human body. That's all. Modern biology does not even touch the subject of science of mind, science of intelligence, science of soul. Nowhere. Modern biology even does not mention that the cause of life is the soul. Modern biology has no scope, no understanding, because modern biology basis is only human observation, human experiment, human capacity, human intelligence, which is limited. That's why human beings cannot see and understand that the cause of life is not the body. Cause of life is something higher than the body. Higher than body is the mind, higher than mind is the intelligence, and higher than intelligence is the soul. We say spirit soul, जीवात्मा. एक शरीर है, हमें शरीर का ज्ञान चाहिए, जो मॉडर्न बायोलॉजी है. मन का विज्ञान पता होना चाहिए. Mind is very powerful. You should know the science of mind, how it functions, how to control the mind, how to use the mind for our benefit. We should know. Then science of intelligence, higher science, and ultimately highest is the science of the divine eternal soul, which is our real self. आज के समाज में लोग जानते ही नहीं हैं, बहुत लोग जानते नहीं हैं कि अपना जीवन ये आत्मा की वजह से है, न कि बॉडी की वजह से. बॉडी मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, बट द सोल इज ऑलवेज देयर. वाई? दिस सोल, ये आत्मा जो है, ये भगवान का दिव्य सनातन अंश है. इन ऑल द स्क्रिप्चर्स, सभी शास्त्रों में, सभी धर्म ग्रंथों में ये कॉमन बात है कि एक परमेश्वर है, एक भगवान है. दिस इज वन सुप्रीम लॉर्ड हु इज द सोर्स, हु इज द सोर्स ऑफ ऑल द billions and billions of universes. Not just source, he is the maintainer also.
He is the maintainer of all the universal existence. भगवान जगन्नाथ, हम बच्चों को बोलते हैं जगत के नाथ, जगत का नाथ भगवान जगन्नाथ। ये तो सच है कि भगवान जगन्नाथ है, यदि नाम है ना जगतनाथ, जगत का नाथ तो कोई होना चाहिए, कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। दुनिया कौन बनाया? कोई नहीं बनाया। ये एमपी हॉल कौन बनाया? हाँ, ये कोई बनाया। ये घर दुकान कौन बनाया? हाँ, ये कोई बनाया। ये पेंटिंग कौन बनाया? हाँ, कोई तो बनाया। ये मोबाइल कौन बनाया? हाँ, कोई तो बनाया। और दुनिया कौन बनाया? दुनिया कोई नहीं बनाया। लोग ऐसा सोचता है। People think that for the universal creation there is no need of the creator. That is their nonsense understanding, foolish understanding, that for small creation, for small creation of pencil, chalk, small painting, you need someone to create. You need someone to create. But for the unlimited universal creation, there is no need of creator. That is their faulty understanding. There must be a divine supreme creator to create such a beautiful, wonderful, unlimited creation. You should have sense. हमें वो ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए समझने के लिए। इतना सुंदर दुनिया बनी है जिसमें इतना लाखों प्रकार का जीवन है। 84 lakh species are there. How many? 84 lakh species are there. Aquatics, है ना? Aerial, then land, है ना? Living beings. 84 lakh species. Not just planet Earth. Life is there on all the planets, in all the universes. Life is there. Otherwise, what is the use of their being in the space? All the planets are for habitation of some living beings. Some are higher living beings, some are medium living beings, some are lower living beings. All the planets in our whole universe, life is there. How can we say? The Supreme Lord has mentioned all these things in the manual which He gave in the beginning of creation, and that manual is Veda, given in Sanskrit language. First time to Lord Brahma. First time who was born? The first living being in the universe. ब्रह्मांड में पहले जीव ब्रह्मदेव होते हैं। ब्रह्मदेव जिनका जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। What happened when Britishers wanted to rule on India? They wanted to capture India. They studied that the strength of the India is their Vedic knowledge, Vedic science. Unless these people have Vedic knowledge, Vedic science, they cannot be controlled, they cannot be slaved. So Lord Macaulay, that time who was the governor, Lord Macaulay, he came to study Indian systems. So he understood, unless we remove Vedic knowledge, Vedic science from the Indian studies, we cannot control, we cannot slave these Indian people. Because knowledge is power. Knowledge is power. So they said, they used trick. और चालाकी से क्या किए, अपने जितना भी वैदिक साइंस था, वैदिक बुक्स था, इनको बोल दिया all these books are Hindu mythology books. All the Vedic sciences, Vedic knowledge was given a name. What that? Hindu mythology books. And what is mythology? Which is a myth. झूठा है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, मिथ, MYTH, मिथ, मिथ्या,
झूठा है, सत्य नहीं है। हम बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी बुक्स, दीज आर नॉट माइथोलॉजी बुक्स, प्लीज नो। ये दंत कथा नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य ज्ञान है। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ ऑल्सो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता is not mythology, is the divine science. People have not seen, people have not read, people have not heard from authentic source, so they doubt. People doubt वो भगवान होते हैं कैसे माने, आत्मा होता है कैसे माने, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कि पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने क्या पढ़ा है? मॉडर्न साइंस। ये कौन दिया मॉडर्न साइंस? ब्रिटिशर्स, मेनली ब्रिटिशर्स। If you see physics, chemistry, biology, mathematics also, you will find the names of European people in the name of scientists. साइंटिस्ट के नाम पे जिनका नाम हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में, ये सभी मोस्टली 90% आर फ्रॉम यूरोपियन साइड, यूरोपियन पीपल, because Britishers gave this knowledge as a science to cheat us. See, we have some understanding of biology, physics, chemistry, maths, but the highest understanding is in our own culture, own heritage, that is Vedic science. I'll be short, मैं इससे कम समय लूँगा, लेकिन जो आवश्यक बात है, आप देखिए, आप बॉडी को जानते हैं, लेकिन यदि मन को नहीं जानते, बुद्धि को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, जो हम हैं, हम आत्मा हैं। आपको ये कभी अनुभव है? आई गिव एग्जाम्पल, प्लीज बॉयज, प्लीज पे अटेंशन। सीधा बैठिए, सब लोग झुक गए, सीधा बैठिए, सावधान, है ना? जब स्किल्स की बात बोलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल to acquire knowledge is to listen attentively. जो लोग ध्यान से सुन सकते हैं उनको ज्ञान अच्छे से हो सकता है, जो सुन नहीं पाते वो कभी समझ नहीं पाएंगे। We should have skill to focus, we should have skill to concentrate on listening. सुनना सबसे बड़ा गुण है, कला है, सुनने का कला। जिनको सुनना आता है वो महान बनते हैं। क्यों? सुनने से हम लोगों से जुड़ते हैं, सुनने से हम लोगों से जुड़ते हैं। आज फैमिली में प्रॉब्लम क्या है, समाज में प्रॉब्लम क्या, सोसाइटी में? कोई सुनना नहीं चाहता है, सब लोग बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो पति पत्नी का भी जो है जमता नहीं है, माता पिता बच्चों का भी जमता नहीं है। क्यों? कोई सुनना नहीं चाहता है, सब अपनी बात बोलना चाहते हैं बस। तो हमें सुनने का गुण आना चाहिए। सब आपको बाकी जो गुण है, ज्ञान है, सब कुछ अपने आप होगा। यस, आई विल स्पीक अबाउट बेसिक लाइफ साइंस। बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग। और फिजिकल बॉडी मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, फिजिकल बॉडी, अपना जो शरीर है जन्म से हमेशा बदलता आया है। यदि आप अपना बचपन का फोटो देखो, पहला जन्मदिन का फोटो देखिए, फर्स्ट बर्थडे फोटो, एंड यू सी यूर टुडेज फोटो, कंपेयर, तुलना कीजिए आपका बचपन का फोटो आज की फोटो, तुलना कीजिए। बॉडी हैज़ चेंज। आप बोलेंगे नहीं सर, बॉडी कहाँ चेंज हुआ है, बॉडी हैज़ ग्रोन अप। क्या बोलेंगे? ग्रोन अप। बट ग्रोइंग इज ऑल्सो चेंज, ग्रोथ इज अ चेंज, इज चेंज, बॉडी चेंजिंग। बट डू यू फील एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इन द बॉडी यू हैव चेंज? क्या आपको लगता है जो व्यक्ति है शरीर में वो बदल गया? वो नहीं बदला है, व्यक्ति तो वही है। दो चीज़ है, ये शरीर, ये बॉडी जो एक गाड़ी के समान है, ये बॉडी जो एक गाड़ी के समान है, हम जो है व्यक्ति वो
यात्री है, पैसेंजर, सवारी है बॉडी में। यदि आप ये चीज़ समझ जाएंगे, हम बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी में हैं, जो बदलता नहीं, बॉडी बदलता रहता है। See, all the problems nowadays in society are because of not understanding that our pleasure is not the body pleasure. अपना सुख जो है, आत्म सुख, ये बॉडी का सुख नहीं है, क्योंकि बॉडी हम नहीं हैं, हम दिव्य आत्मा हैं जो कभी बदलता ही नहीं है। बॉडी हैज़ बर्थ, body changing all time, and one day body has a death, but the soul, हम जो आत्मा है, उसका ना जन्म होता है, ना कोई चेंज होता है, बदल होता है, ना कोई उसकी मृत्यु होती है। हम सब जीना चाहते हैं, हम सब जीना चाहते हैं 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए। बच्चों, हम जीना चाहते हैं 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। क्यों? बॉडी तो नहीं जिएगा हमेशा के लिए, लेकिन हम जिएंगे, इसलिए आत्मा, हम जो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, क्या बताया स्वभाव आत्मा का? सच्चिदानंद, सतचित आनंद, 3 शब्द है, सतचित आनंद। सत मीन्स शाश्वत, नित्य, न बदलने वाला सत। चित ज्ञानमय, आत्मा ज्ञानमय होती है क्योंकि भगवान का अंश है। आनंदमय है, आत्मा क्या है? आनंदमय, क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर, तो उनका अंश होने के नाते हम भी कौन हैं? आनंदमय हैं। लास्ट 5 मिनट्स प्लीज पे अटेंशन, कि अगर हम समझेंगे कि अपना स्वभाव बॉडी का स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव आत्मा का स्वभाव है, तो आपके लिए अपने मन को न शांत करना, मन का जो खुशी है, मन का जो शांति है, हो सकता है। आपकी बुद्धि जो है आप जगा सकते हैं। यू कैन अवेकन योर इंटेलिजेंस विच इज स्लीपिंग मोस्ट ऑफ टाइम। अपनी बुद्धि सोई रहती है, हम केवल अपनी बॉडी से काम करते हैं, बुद्धि से काम बहुत समय नहीं करते हैं। इफ यू कैन अवेकन योर इंटेलिजेंस, वो कैसे संभव होगा? हाउ विल यू डू इट? बाय नोइंग योर रियल सेल्फ। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे कि अपना स्वरूप ये हड्डी मांस का नहीं है, ये बॉडी का नहीं है, जो बदलता रहता है। इवन द फेस चेंजेस विद टाइम। आई टोल्ड यू कैन चेक द फोटोज, फर्स्ट फोटोज और नाउ फोटो, है ना, फेस हैज चेंज। इसलिए अपना जो मूल स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है। ये बेसिक ज्ञान यदि होगा तो अपने मन को शांत रखना संभव है। मन का काबू जो है संभव है। माइंड कंट्रोल इज पॉसिबल। अपने जो सेंसेस है, इंद्रिया, सेंस कंट्रोल भी संभव है। इफ यू नो दैट our nature, our real self is not a body, is not the mind, is not the senses, even not the intelligence. Our real self is the divine, eternal spirit soul, which is the Amsha, part of God. In Bhagavad Gita, that famous shloka is there, 15th chapter, number 7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति. The meaning is, the Lord Krishna in Bhagavad Gita saying that all the living beings in the whole creation are my divine eternal parts. सभी जो जीव है वो मेरे शाश्वत सनातन अंश है। अभी क्या कंडीशन है अपनी? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, दीज सोल्स आर स्ट्रगलिंग हार्ड। ये जो आत्माएं हैं संघर्ष कर रही है, किसके लिए? केवल जीने के लिए। जस्ट टू मेंटेन आवर लाइफ वी आर
स्ट्रगलिंग हार्ड, वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड। अपना संघर्ष चल रहा है, कठिन संघर्ष चल रहा है। किसके लिए? केवल अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए, क्योंकि बॉडी मिला है ना। द बॉडी इज वेरी अनसर्टन। जो शरीर मिला है ये बड़ा अनिश्चित है। इस बॉडी का कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। हम जीना तो चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम समाधान चाहते हैं, लेकिन जो बॉडी मिला है, हड्डी मांस का बॉडी, ये हमें वो नहीं देता है। क्योंकि बॉडी गिव्स पेन, बॉडी गिव्स डिफिकल्टी, बॉडी गिव्स चैलेंजेस, बॉडी गिव्स डिस्कम्फर्ट्स। Body gives discomfort, you should know. I'll give example. We consider life as a journey. We consider life as a journey. बोलते ना जीवन एक सफ़र है। जीवन क्या है? एक सफ़र है। जीवन एक यात्रा है। यात्रा में क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो बॉडी मिला है। हमें कौन सा बॉडी मिला है? ह्यूमन बॉडी। किसी को मिला है कुत्ते का बॉडी, किसी को मिला है मंकी बॉडी। वो भी एक बॉडी है, वो भी एक मॉडल है बॉडी का, गाड़ी का। वी हैव सेंसेस, वी हैव सेंसेस, 5 सेंसेस मेनली: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन टू एक्वायर नॉलेज। वी हैव 5 सेंसेस टू एक्वायर नॉलेज। ज्ञान पाने के लिए अपने 5 इंद्रियां हैं। द माइंड इज नोन एज द 6th सेंस। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। मनः षष्ठानि मीन्स 6 इंद्रियाणि, द किंग ऑफ द सेंसेस। माइंड इज नोन एज किंग ऑफ द सेंसेस। इन द व्हीकल वी हैव व्हील्स फॉर मूवमेंट, फॉर द मूवमेंट व्हील्स आर देयर। In the body we have senses to have movement. 5 are Gyanendriya and 5 are Karmendriya. Working senses: legs, hands, speech. These are known as working senses. Mind is the king of senses. Our senses are like the wheels. Body is a vehicle. Please pay attention. I am comparing our life with journey. Body is a vehicle, senses are wheels. Mind is the king of senses, mind is the brake. Mind is the brake to apply on the senses. क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, what to do, what not to do. ये क्या है? ब्रेक लगाना है, मन का ब्रेक। कैसा लगेगा? बुद्धि से। लाइक द व्हीकल, हु इज अप्लाई द ब्रेक? इन द व्हीकल हु अप्लाई द ब्रेक? ड्राइवर। इन द सेम वे, टू अप्लाई द ब्रेक ऑफ माइंड वी नीड द ड्राइवर ऑफ द इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? अपनी सारथी है, बुद्धि अपनी चालक है, ड्राइवर है। यदि बुद्धि सो गई होगी तो इफ द ड्राइवर इज स्लीपिंग देन द व्हीकल विल गो इन द डिच, और गड्ढे में जाएगा। यदि ड्राइवर सो गया तो गाड़ी का क्या होता है? गाड़ी का क्या होता है? हादसा होता है। वैसे ही जब अपनी बुद्धि सोई होगी, हमसे गलतियां होती है, हमें सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता है। जो गलत है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मन जो है पागल जैसे इच्छा करता है, ये चाहिए वो चाहिए। मन ये सोचता नहीं कि ये सही है गलत है। मन का स्वभाव क्या है? केवल इच्छा करना। और बुद्धि का काम है कि मन का जो इच्छा है वो चेक करे। इंटेलिजेंस हैज़ टू चेक, इंटेलिजेंस हैज़ टू चेक द डिज़ायर ऑफ माइंड। बुद्धि को सोचना चाहिए कि मन का जो विचार है वो सही या गलत है। बुद्धि का जो शक्ति कैसे मिलेगा? बुद्धि का शक्ति होता है ज्ञान। यदि हमें ज्ञान नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं होगा, तो बुद्धि को ताकत नहीं होती है। सही ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हमें जो भगवान ज्ञान दिए हैं
दिव्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान थोड़ा पढ़ना चाहिए, कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। भगवद गीता, भगवद गीता जो है संक्षिप्त में सभी वेदों का ज्ञान है, सार है। तो सेंसेस क्या है, अपना व्हील्स है, माइंड क्या है, ब्रेक जो लगाना है। ब्रेक कौन लगाएगा? बुद्धि, जिसको ज्ञान होगा, सही ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो हम कौन हैं? इस जीवन के सफ़र में हम हैं सवारी, हम हैं यात्री, हम पैसेंजर है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि सफ़र है तो अपना गंतव्य स्थान क्या है, व्हाट इज़ आवर डेस्टिनेशन टू गो रीच, पता होना चाहिए। तो अपने वेदों में बताया है, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। लास्ट पॉइंट आई एम सेइंग, ये जीवन का अपना गंतव्य स्थान है, लास्ट डेस्टिनेशन। कभी अपने तो बोलते होंगे ना, ये बोलते हैं कभी, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब क्या होता है? आई विल जस्ट स्पीक इन 1 मिनट। गमन, गमन मतलब जाना, आगमन आना, गमन जाना। गमय वेदों का आदेश है, उपदेश है। क्या उपदेश है? गो, गमय, गो वेयर, असतो मा सद्गमय। असत मतलब क्या है? ये नाशवान जगत, दी पेरिशेबल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, विच इज टेम्पररी। दुनिया बनती है, थोड़ा समय रहती है, बाद में नष्ट होती है। लेकिन हमें जीने की इच्छा है हमेशा के लिए, हमेशा होने की इच्छा है, वो कहाँ संभव है? सो सद्गमय, भगवान का धाम जो नित्य है, जो अविनाशी है, नित्य। ये दुनिया क्या है? विनाशी है, नाशवान है। लेकिन भगवान का धाम क्या है? आध्यात्मिक जगत अविनाशी है। एक लास्ट पॉइंट, हम दुनिया में आए हैं, हम दुनिया में आए हैं, आए ना? नहीं आए, पहले से हैं। आप स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? बच्चों, आप लोग स्कूल में आए थे या पहले से हैं ऐसे? कब आए? 6th क्लास एडमिशन, सब लोग वैसे ही आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम अपने गांव से आए। क्या बोलेंगे? हम अपने गांव से आए। आप स्कूल में हमेशा के लिए हैं? नहीं सर, अभी आए हैं ना, हम जाएंगे नहीं, हम स्कूल छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होगा? आप लोग एक दिन जाएंगे, यू विल पास आउट। हम भी पास आउट हो गए 98। हम आते हैं और फिर जाते भी हैं। आपको पता है आप कहाँ से आए हैं, इसलिए वेकेशन में आपको जाने के लिए दुख नहीं होता है। आपको दुख होता है, ओ वेकेशन, व्हाई टू गो, आई एम हैप्पी इन नवोदय स्कूल। You are happy now also, but you will be more happy to go back to your native place. बच्चों, वैसे ही अपने जीवन का भी है, हमें पता होना चाहिए हम दुनिया में आए हैं जन्म लेकर, हम कहाँ से आए हैं। मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न साइंस हैज़ नो स्कोप टू इन्फॉर्म अस, टू टेल अस कि हम कहाँ से आते हैं। ये उनकी बस की बात नहीं है बोलने का, साइंटिस्ट की बस की बात नहीं है कि हमें बोल सके कि हम दुनिया में जो आए हैं कहाँ से आए हैं। भगवान ज्ञान दिए हैं वेदों में, हम सभी उनके धाम से दुनिया में आते हैं। धाम का नाम क्या है? वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम। हम वहाँ से नीचे आए हैं, इसलिए जब जाने का समय आएगा, अभी किसी को जाना नहीं है, जब जाने का समय आएगा तब हम दुखी नहीं होंगे, हमें भय नहीं होगा, क्योंकि पता है हम कहाँ से आए हैं। अब जब पता नहीं होगा हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाना चाहिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट पॉइंट ये है, असतो मा सद्गमय। भगवान का धाम को बोलते हैं सतधाम, नित्य धाम, शाश्वत धाम। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये दुनिया जो है अंधकारमय है, अंधेरा है, अज्ञान है, तमस।
अज्ञान, अंधेरा। यहाँ पे ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? आत्मा ज्ञान नहीं है, हमें जीवन का ज्ञान नहीं है। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आपको कोई पूछे, इफ आई आस्क यू, आप कितना समय बॉडी में हैं? हम इस बॉडी में कितना समय रहने वाले हैं? नो साइंटिस्ट, नो पीएम, नो सीएम, नो बिजनेसमैन, नो एनी scholar can answer, can know how much time we have to live in the body, in this world. हमें अपना ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है। जैसे अभी बताया, हम कहाँ से आए हमें खुद को पता नहीं, हम कहाँ जाएंगे बाद में वो हमको पता नहीं, हम कितना समय है नहीं पता। तो ये अज्ञान, जीवन का अज्ञान, तो बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। भगवान के धाम में ज्ञान ही ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। तो यहाँ से निकलकर हमें कहाँ जाना चाहिए? भगवान के धाम। और क्यों? क्योंकि हम वहीं से आए हैं, हम वहीं के हैं। अपना जो मूल स्थान है, आत्मा का मूल स्थान कौन सा है? भगवान का धाम। अंतिम पॉइंट, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस जगत को बोलते हैं मृत्युलोक। क्या बोलते हैं? मृत्युलोक। तो ये बोला है ओम मृत्युर्मा। माँ मतलब डू नॉट स्टे, माँ मीन्स नॉट, डू नॉट स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम, ऑल टाइम। मृत्युर्मा, कहाँ जाए? अमृतम गमय, वो धाम जहाँ मृत्यु नहीं होती है, वहाँ जीवन कैसा होता है? शाश्वत होता है। So our Vedic science, our Vedas inform us that our ultimate purpose is to connect to God. भगवान जगन्नाथ से अपना संबंध को जोड़ना, जगन्नाथ से अपना संबंध को जोड़ना, जगन्नाथ के धाम जाना अंत में। और जब दुनिया में है, जगन्नाथ का सेवा समझना, ये अपने जीवन का उद्देश्य है। देखिए, ऑल द लाइफ वैल्यूज विल कम ऑटोमेटिकली इफ यू नो दिस बेसिक लाइफ साइंस। ये थोड़ा बेसिक जीवन का पता होगा, वैल्यूज अपने आप आएगा। यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ, you will understand the value of others, you will respect your teachers, you will obey your parents, you will serve your elders। ये भावना आएगा। क्यों? वसुदैव कुटुंबकम। अपना सभ्यता क्या है? अपनी सभ्यता हम सबको अपना मानते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, 2-4 लोगों का फैमिली नहीं, पूरे पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? अपना बड़ा परिवार, वसुदैव कुटुंबकम। तो जब हम जानेंगे कि हम भगवान के बच्चे हैं, जो बोलते ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। यदि भगवान आपके माता पिता बन जाए, यदि भगवान आपका बंधु सखा बन जाए, भगवान आपका साथी बन जाए, तो आपको ज्ञान बुद्धि शक्ति सब कुछ मिलेगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। ये सब हो जाएगा। भगवान से शक्ति मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आपका मन शांत होगा, बुद्धि जग जाएगी और आपका जीवन महान बनेगा। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। बहुत धन्यवाद सर। जैसे बघा काही प्रबोधन सिस्टम में आम्हाला बैठे काही पता नाही केला तरी एक घंटा मध्ये